Welcome students in biology class. In previous video we described about the biotechnology application in medicine, in which we discuss about the genetically engineered insulin, gene therapy process, as well as the molecular diagnosis that is used just like a PCR, ELISA test, and so on. We discussed in previous video. Okay. Today we discuss the next topic, that is the transgenic animals. This is the very important topic. Transgenic animals. Why we are choose this topic? Because through this topic we know about the different type of disease which we are easily study of the disease, and we are also that is formation of different product which are helpful for the human beings, that is also useful for the vaccine formations, cloning formations, as well as that is used in the replacement of defective parts. So this is the very important. So today we start the topic, that is the transgenic animals. First thing, what is the transgenic animals? Animals that had their DNA manipulated to process and express an extra gene are known as the transgenic animals. Means animals that have had their DNA manipulated, एनिमल का जो डीएनए मैनिपुलेटेड होता है टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा जीन, और वह एक एक्स्ट्रा जीन के साथ एक्सप्रेस होता है, दिस आर नोन एज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. सिंपल वर्ड में यदि इसका डेफिनेशन बोले तो व्हाट इज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स? द एनिमल्स विच कैरीज फॉरेन जीन्स आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ठीक है, तो शॉर्ट में क्लियर है आपको. द एनिमल्स विच कैरी फॉरेन जीन, वो एनिमल जो फॉरेन जीन को कैरीज करें, दिस नोन एज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स. ओके. फॉर एग्जाम्पल ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग, sheep, cow, goat and fish. ठीक है, that different type of transgenic animals that is developed for the different type of uses. Over 95% of all the existing transgenic animals are mice. ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो माइस है. माइस में किया गया है. There are several benefits of transgenic animals. Transgenic animals के क्या benefits हैं? That different benefits of transgenic animals. First one, that is the normal physiology and developments. Means transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal functioning of the body and its development. Okay, the normal physiology and development transgenic animals में क्या होता है? Can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated. वह जीन किस तरह से रेगुलेट करता है and how they affect the normal functioning of the bodies. वह किस तरह से नॉर्मल बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट करता है एंड इट्स डेवलपमेंट्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि लेते हैं द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. एक एग्जांपल इसमें द स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स. ओके, so that is clear.
second one, study of disease. Many transgenic animals are designed to increase the understanding of how gene contribute the development of disease. ठीक है, मैनी एनिमल्स जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उसको डिज़ाइन किया गया और इंक्रीज किया गया कि अंडरस्टैंडिंग हाउ जीन आर कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, किस तरह से जीन डिजीज को डेवलप करता है, सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटॉइड्स, आर्थराइटिस एंड अल्जीमर्स। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज इसके द्वारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स के द्वारा हम उसको स्टडी कर सकते हैं। These are specially made to serve as models for human disease, so that investigation of new treatment for disease is made possible. ठीक है, तो इसके बेस पर ट्रीटमेंट के लिए डिफरेंट टाइप के मेडिसिन ये बनाए गए हैं अगेंस्ट द डिजीज। दैट इज क्लियर। थर्ड वन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ह्यूमन डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय मेडिसिन्स दैट कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। जो ह्यूमन का डिजीज है वो ट्रीट किया जाता है मेडिसिन के द्वारा विच आर कंटेन द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जिसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रेजेंट हो, मीन्स दैट इज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ओके, जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट वन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ the portion of DNA or gene that code for a particular product such as human proteins। ठीक है, पोर्शन ऑफ DNA और जीन का वो पार्ट लेते हैं विच आर कोडिंग ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंडिकेट करता हो। फॉर एग्जांपल अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। अल्फा 1 antitrypsin which is used to treat emphysema डिजीज के अगेंस्ट जो प्रोटीन हम यूज़ करते हैं ट्रीट करते हैं वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है। दैट इज क्लियर। सेकेंड है, सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलक्यूटिनेरिया। फिनाइलक्यूटिनेरिया वी आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर्स। ठीक है, तो इस डिजीज़ के अगेंस्ट भी सिमिलर मीन्स ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज़ करते हैं, एज वेल एज इन सिस्टिक फाइब्रोसिस के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन सा है, तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन सा है, काउ है, जिसका नाम क्या है, रोजी। प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन रिच्ड मिल्क, यह प्रोड्यूस करती है जो ह्यूमन प्रोटीन होता है उसके मिल्क में प्रेजेंट होता है ह्यूमन प्रोटीन, नियर अबाउट 2.4 ग्राम पर लीटर। एक लीटर में 2.4 ग्राम ह्यूमन प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। दैट इज डेवलप्ड इन 1997 मीन्स 1997 में इसको डेवलप किया गया था। द मिल्क कंटेन, जो रोजी गाँव का मिल्क है, द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज दैन नॉर्मल काउ मिल्क। ठीक है, तो इसमें जो मिल्क प्रोड्यूस होता है रोजी काउ के थ्रू, उसमें जो प्रोटीन होता है ह्यूमन बींग्स का वो होता है अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन्स होता है, विच हैव द न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड दिस द मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज। जो छोटे बच्चे हैं ह्यूमन बेबी के, उसके लिए ये एक गुड सोर्स है न्यूट्रिशनल का दैन नेचुरल काऊ, जो नॉर्मल काऊ होती है उसकी अपेक्षा। जो ट्रांसजेनिक काऊ है उसका मिल्क दैट इज़ द बेनिफिटेड फॉर द human babies। That is clear। So this is the different biological product that is developed। Clear। Next, that is the vaccine safety।
ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड ऑन द टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। ठीक है, जो ट्रांसजेनिक माइस है उस पर ये यूज़ किया गया टेस्टिंग किसका, सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूमन। ह्यूमन पर पहले यूज़ करने से पहले उसका यूज़ कहाँ किया गया है, ट्रांसजेनिक माइस पर। ठीक है, कि यह सेफ्टी है कि नहीं है, अफेक्ट तो नहीं करता। फॉर एग्जांपल जिसका जो किया गया है पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इफ फाउंड रिलेबल एंड सक्सेसफुल दे कुड रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी इन ऑर्डर टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ बैचेज ऑफ दिस वैक्सीन। ठीक, यदि वो माइस में क्लियर हो गया, कोई अफेक्ट नहीं कर रहा, देन मंकी पे किया जाता है। ठीक है, मंकी पे क्यों करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो मंकी से मैक्सिमम मेल खाता है, उसका जेनेटिकल भी मंकी से मैक्सिमम मैच करता है। ठीक है, इसलिए पहले मंकी पे किया जाता है। इस समय जो डिजीज़ चल रहा है कोरोना वायरस, इस डिजीज़ का भी जो ट्रीटमेंट, फर्स्ट ट्रीटमेंट या सेकेंड ट्रीटमेंट मंकी पे किया गया है। ठीक है, पहले उसको अफेक्ट देखा जाता है, देन दैट इज़ द यूज़ ऑन ह्यूमन बींग्स। उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो उसके बाद ह्यूमन बींग को इसका उपयोग किया जाता है। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग। इट इज सिमिलर टू द प्रोड्यूसर यूज फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इसके थ्रू यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स को। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी द जीन। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होता है दिस इज द मेड दैट कैरी द जीन, जीन को कैरीज करता है, विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट द नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स होता है टॉक्सिक अगेंस्ट उनमें कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं टॉक्सिक कंपोनेंट जो प्रेजेंट है तो वो मोर एक्टिव सेंसिटिव हो जाते हैं। मीन्स दैट इज इंडिकेट दे आर देन एक्सपोज टू टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इफेक्ट और स्टडीज। ठीक है, और तुरंत इंडिकेट करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को जिस पर वो स्टडी किया जाता है। दिस अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम, और इसके द्वारा हम कम समय में ही रिजल्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, ग्रोविंग ऑफ स्पेयर पार्ट्स। इसके द्वारा जो स्पेयर हो गए पार्ट उसको ग्रो कराया जाता है। स्पेयर पार्ट्स फॉर एग्जांपल हार्ट, पैंक्रियाज of pig for human use can be grown through the formation of transgenic animals। ठीक है, ह्यूमन के लिए यूज़ किया जाता है किसका, पिग का। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पिग है उसके थ्रू हार्ट और पैंक्रियाज जो ह्यूमन पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, उसको डेवलप किया जाता है फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। Replacement of defective parts with freshly grown part from own cell can be done। इसके द्वारा ये भी किया जाता है। क्लियर। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन, प्रोडक्शन ऑफ क्लोन्स। इसके द्वारा क्लोन का प्रोडक्शन होता है। क्लोन्स ऑफ सम एनिमल्स कैन बी प्रोड्यूस, इवन ह्यूमन क्लोन्स मे बी फॉर्म इफ एथिक्स अलाउ द सेम। ओके, so this is the different importance of the transgenic animals। that is clear। कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं जिसमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स डेवलप किए गए हैं। जैसे ट्रांसजेनिक फिश में है साल्मोन, साल्मोन स्पीशीज इसमें ट्रांसजेनिक डेवलप किया गया है। ट्रांसजेनिक चिकन एवियन लिकोसिस वायरस किया गया, इसको यूज़ किया गया है। ट्रांसजेनिक गोट्स that is also developed in 1990 and they have the increase here the alpha 1 antitrypsin which are present inside them in the milk
Okay. There is another species, that is the ND. ND क्या है? DNA of the fluorescent jellyfish was introduced into an unfertilized egg of the rhesus monkey in the test tube. The diploid eggs underwent cleavage and the early embryo was implanted in the surrogate mother. ND, ND, the first transgenic monkey. ND क्या है? This is the first transgenic monkey है, was born on October 2, 2000. It has been named ND, the acronym of inserted DNA. एक्रोनेम है किसका? जो इंसर्टेड डीएनए किया गया. दैट इज क्लियर. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स. दैट इज क्लियर. आई होप दैट ऑल ऑफ यू नो अबाउट देम, अंडरस्टैंड अबाउट देम. यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और आइकन बेल को प्रेस करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़. अगेन थैंक्स.